السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آپ نے گزشتہ ویڈیو میں ساجد یزدانی صاحب کو سنا، وحید مراد صاحب کے حوالے سے باتیں کی، کیا کیا باتیں ہوئی، وہ سارا کچھ آج پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 2 میں انہوں نے بتایا کہ ہیرو فلم کے دوران ان کے ساتھی اداکاروں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، ان کے ساتھ تعاون کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بابرہ شریف کے حوالے سے کہا جاتا ہے، انہوں نے خود بھی اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے فری کام کیا تھا ہیرو فلم میں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو میں بھی یہ قصہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ ساجد یزدانی صاحب نے وہ پورا قصہ بتایا کہ کس طریقے سے وحید مراد صاحب اسٹوڈیو میں آئے ایورنیو میں، اور وہ چکر لگا رہے تھے، اور سنگیتا کے والد نے وحید مراد صاحب کو دیکھ کے کیا کہا تھا۔ یہ بھی بڑی ایک دل ہلا دینے والی بات ہے کہ دیکھو انہوں نے کیا بات کی تھی۔ لیکن اسی دوران میں بابرہ شریف کو وہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ہیرو فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ وہ اس زمانے میں بابرہ شریف نے پھر شمیم آرا کے ساتھ جب شوٹنگ کری تھی، شمیم آرا کو وحید مراد صاحب کے بارے میں کیا کہا جس ٹائم وہ شوٹنگ کرنے کے لیے تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شمیم آرا ان دنوں میں مس سیریل بنانا شروع کر چکی تھی، اور شمیم آرا جو تھی وہ کافی ساری فلموں میں اپنی ہدایت کاری کے انڈر بابرہ شریف کو لیتی ہوتی تھیں۔ اسی طرح انہوں نے باقی جو قصے سنائے ہیں ان کے جنازے کے حوالے سے، کہ ان کے جنازے میں کون کون آیا، کس کس طریقے سے آیا، سب سے زیادہ غمگین کون تھا ان کے جنازے میں، اور محمد علی صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، زیبا کو انہوں نے منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ پھر ان کے اپنے جو رویے تھے وحید مراد صاحب کے، اس کی کیا کنٹریبیوشن تھی، جو ان کے تھوڑا سا زوال کا زمانہ تھا وہ کیسے تھا، اور ہیرو فلم کی شوٹنگ کے دوران اور کیا کیا واقعات پیش آئے تھے اس کے بعد، اور کس اداکار نے اتنے مشکل وقت میں کس ساتھی اداکار نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں آپ سن چکے ہیں پہلے بھی، اور اس ویڈیو میں بھی ذکر ہے کہ کس نے منہ موڑ لیا تھا، لیکن یہاں پہ کچھ کردار ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، آخر تک دیا۔ ہدایتکاروں کو تو آپ بھی جانتے ہیں، کافی سارے نام ہیں، لیکن کچھ ساتھی اداکار ہیں، ان میں فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں۔ وہ کون تھے جنہوں نے دیا تھا؟ ابھی آپ پارٹ 2 اس کا سنیے۔ اس انٹرو کے بعد دوبارہ ان کی مجھے کال بھی آئی تھی ساجد یزدانی صاحب کی، وحید مراد اپنے جونیئرز کو لے کے کیسے تھے، وہ انہوں نے قصہ سنایا، وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اس انٹرو کے اختتام پہ سنا دیتا ہوں۔ ابھی آپ پارٹ 2 دیکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنا فیڈ بیک دینا بھی نہ بھولیے گا۔ ایک دفعہ میں ایونیو اسٹوڈیو میں گیا تو ہم روز روٹین میں جب جاتے تھے، میں سنگیتا پروڈکشن کے دفتر کے باہر، ان کے والد صاحب پروڈیوسر تھے طیب رضوی، بالکل جیسے آپ کرسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ایونیو کے لان میں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وحید مراد صاحب وہاں سے گزرے، ایسے گھومتے ہوئے فوارے پہ گئے تھے، گھومتے ہوئے لان میں گھوم رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے۔ تو مجھے کہنے لگا طیب رضوی نے کہا کہ یار دیکھو ویڈیو نے کیا حالت بنا رہی، شیپ بڑی ہوئی تھی، وہ نشان جو زخموں کے تھے ابھی ان کے چہرے پہ یہاں پہ نشان طریقوں کے میں نے پتہ نہیں کیا وجہ ہوگا، میں اٹھ کے وہاں اٹھ کر، کیونکہ دفتر ہمیں جانا ہوتا تھا رپورٹنگ کے لیے، تو میں سامنے شمیم آرا پروڈکشن میں چلا گیا، وہاں پہ بابرہ بیگم اور شمیم آرا اور پروڈکشن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں مجھے پتا چلا کہ وحید مراد جو بات کہہ رہے ہیں وہ بابرہ شریف کو ملنے کے لیے وہاں کہہ رہے ہیں، چونکہ ان سے ڈیٹ چینی ہے اپنی فلم ہیرو کے لیے، ان کی فلم مسجد کے لیے۔ تو اسی اصلاح میں بابرہ شریف کا مینیجر تھے عباسی صاحب ہوتے تھے، پہلے محمد علی صاحب کے پاس تھے سیکٹری، بابرہ شریف کے پاس تھے۔ تو بابرہ نے ان کو بلایا، باسی کیا مسئلہ، بار بار کیوں آ رہے کمرے میں؟ انہوں نے کہا جی وہ بھائی دوبارہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، بار بار وہ پوچھ رہا ہے ڈیٹ کے بارے میں، یہ وہ۔ تو بابرہ نے بڑے ناگوار انداز سے ناک منہ چڑھا کر، اور کیا کروں میں نے، میڈم شمیم آرا کو کہنے لگی میں نے اب یہ کرنی ہے، آپ کی فلموں کے لیے جانا ہے، باہر جانا ہے، بینکاک جانا، یہ وہ، کیسے کیا کروں گے وہ، مطلب اس نے اچھا ناگوار سا وہ کیا، اس نے کہا کہ یار رکھا دو اس کو۔ تو میں اندر بیٹھا صرف سن رہا تھا گفتگو، ایک رازدار کی طرح ڈائری لکھتا تھا، تو ایک رازدار کی طرح میں دیکھ رہا تو سارا منظر۔ حالانکہ میڈم شمیم آرا بھی ان کے ساتھ کام کر چکی تھی، اور وہ بابرہ شریف نے بھی ان کے ساتھ بہت فلموں میں کام کیا، لیکن رویہ آخر میں یہ تھا کہ جبکہ بابرہ بیگم نے آخری دنوں میں میں نے ایک انٹرویو پڑھا تھا، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے، کسی میگزین کو کہا کہ میں نے اس فلم میں فری کام کیا تھا۔ مجھے بھی یہ پتا چلا تھا کہ پیسوں کا پھڈا تھا، اس نے پیسے کو ایڈوانس میں مانگ لیے تھے، جو آدھے دیے تھے، اس کے بعد اصل پیسوں کا پھڈا تھا سارا، حالات ان کے اچھے نہیں تھے، تھوڑے پیسے تھے، تو وہ آرٹسٹ ایک دوسرے سے اتنا تعاون بھی نہیں کیا ہم لوگوں نے، ان کی فلم تاخیر کا شکار ہوتی چلی گئی، اس وجہ سے کہ وہ ساتھی بھی تعاون نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ ان دنوں وہ ٹہل رہے تھے نا وہاں پہ، وہ پریشانی کا عالم میں تھے اصل میں، فوارے پہ جاتے کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی ادھر ٹہل رہے تھے، کبھی وہ بندہ جو لوگ اسی فوارے پر ہم نے دیکھا کہ لوگ 20 لوگ
भैया उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, डेट्स लेने के लिए प्रोड्यूसर फिरते थे उनके आगे पीछे, और परिस्तार उनसे ऑटोग्राफ लेने या फोटो उतरवाने के लिए उनके मुंतजर हुआ करते थे। अब वो अकेले वहां पर बैठे हुए थे तनहा आप फारे पर, और उसके मुंतजर थे वो जवाब दे तो कहीं जाए। तो उस रवैये से ही मुझे अंदाजा हो गया था कि जब वो इंतकाल कर गए तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई उसे अपनों ने ही मारा, उससे रवैयों ने मारा, अपनों के दोस्तों के रवैयों ने उसे, वो सेल्फी भागी था, एहसास फनकार था, फनकार होता भी एहसास है, बिल्कुल कुछ ज्यादा ही एहसास फनकार था। तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका, जमाने की ये निशेबो फराज है ना, उसमें वो ये मौसम जो आया खजां का, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका अपने ऊपर। अच्छा साजिद भाई, किसी ऐसे अदाकार का नाम बताएं। वैसे तो उनकी रहलत के बाद तो काफी सारे किस्से सामने आए कि मोहम्मद अली साहब उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। नदीम साहब के हवाले से वैसे आपने किस्सा आहट वाला भी सुना दिया, मैंने भी अपनी वीडियो में नईम बुखारी साहब का किस्सा सुनाया हुआ कि किसी जगह ताश वाश खेल रहे थे तो उस टाइम एक प्रोड्यूसर आता था, नदीम को एडवांस दे के जाता है, दूसरा नदीम साहब, तीसरा। तो वो जिसने आपने बताया ना कि जावेद फाजिल साहब ने बताया कि मेरी नजर में आज इंतकाल हो गया था, नईम बुखारी साहब कहते हैं मैंने जो कर्ब और जो दुख उसके आंखों में देखा था वहीद मुराद की, वो मुझे दिला दिया था कि एक शोहरत से। तो मुझे बताएं कि ये बाद में सारे जिंदगी में भी उनके कोई काम आया कि नहीं आया जिस टाइम डाउनफॉल था, कि कोई एक बंदा नहीं। इस सिलसिले में मुमताज अदाकार मुमताज का रवैया हमेशा ही अपने साथियों के साथ अच्छा रहा। वो उसने उस फिल्म में उनके साथ तावन किया, मुनव्वर सईद ने तावन किया था, उस दोस्तों ने तावन किया था, उस दिनों में कुछ लोगों ने उनके साथ तावन भी किया था। मुमताज का नाम मैं इसलिए लूंगा कि उन्होंने वाकई इस फिल्म में, वो पहले भी लोगों से तावन करे, इजाज साहब को जब उन्होंने लोगों ने फिल्मों में बिल्कुल किसी ने भी कहा उसके साथ काम करने से माजूरी जाहिर कर दी थी, मगर मुमताज ने फौरन हाजिर कर ली थी उस फिल्म में अली जारफ के साथ काम कर, इसलिए मुमताज में ये पाई जाती होगी कि उसने उस फिल्म में उसके साथ तावन किया था। हीरो फिल्म में सेकंड हीरो देखा जाए अभी बाबरा के साथ थे, एक में मुमताज साथ थे। मुमताज का रवैया हमदर्दाना रहा है जो मैंने देखा है। अच्छा, और ये बड़े हैरानकुन बात है कि बाकी जो साथी मेल अदाकार थे उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो उनके साथ कोई खड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं। जवाल के टाइम में कोई भैया अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तो वो तो बिल्कुल कोई उसके साथ। अच्छा, 70 से लेके 82 तक 83 तक मोहम्मद अली साहब के साथ इनका कैसा बर्ताव था, या मोहम्मद अली साहब का उनके साथ कैसा था? बस आप उनका हेलो आए तक ही था, बस किसी तकरीब में या सेट पे कभी मुलाकात हो गई, कोई कभी मुलाकात, हमने तवील गुफ्तगू, हमने कभी उनकी कोठी में हमने बेशुमार तकारीब अटेंड की, उनकी महफिलों में। मोहम्मद अली साहब तो बहुत महफिल बात थे, वही बात कुछ पीछे रहते थे, लेकिन मोहम्मद अली तो महफिलों के बहाने ढूंढते थे ना, तो उनके घरों में महफिलें लगी रहती, दफ्तर में हर वक्त अल्लाह गुल्ला रहता। इनको मैंने कभी इकट्ठे नहीं देखा सेट पे। वो खुद आना पसंद नहीं करते थे या उनको बुलाया नहीं जाता था? ये एक दूसरे को बुलाते भी नहीं, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ये रिवाज भी नहीं है, हमारे यहाँ कभी देखा नहीं आपने। नहीं, जाहिर है मोहम्मद अली साहब जब वो जो आप कह रहे हैं महफिलों के दिलदादा थे, तो वो यकीनन वो फिल्मी शख्सियात के साथ ही मुलाकातें और सारा कुछ करते होंगे ना। सियासी भी थी लेकिन फिल्मी शख्सियात ज्यादा होते थे, लेकिन वो अपना एक हल्का होता है असल में, पता है क्या फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुप शुरू से रही है, ग्रुप बंदी। तो वो जो बंदा हिट हो जाता फिर अपना एक ग्रुप बना लेता है, वो लोगों में बैठना उठना पसंद करता है, जो उनके चापलूस होते हैं, जो वाह वाह करने वाले होते हैं, तो वो पसंद ही नहीं करते कि अपने लेवल के किसी बंदे को या अपने से किसी बड़े बंदे के साथ बैठा जाए या अपने लेवल के बंदे के साथ बैठा जाए, उससे ज्यादा छोटे लोगों के साथ, क्योंकि वो उसकी वाह वाह में हिस्सा लेते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा उन लोगों ने नुकसान किया है जो ये चापलूसी करते हैं। अच्छा साजिद भाई, एक चीज और बताएं वहीमा साहब के बारे में, जिसने आपने शुरू में भी कहा कि मुझे उन्होंने कह दिया टरखा दिया कि यार क्या पूछोगे, ये पूछोगे, थोड़ा सा आपने खुद बताया कम गोभी थे या उनके बारे में समझा ये जाता मगरूर थे। मुझे ये बताएं उनके अपने रवैये का कितना हाथ रहा होगा इस तमाम सूरत हाल में, कि जब उनके ऊपर मुश्किल टाइम आया तो जब सारों ने मुंह मोड़े, उनके अपने रवैये का कुछ समझते हैं कि उनका अपने रवैये का भी हाथ था? हाँ, मैं
जानब दाराना। जी जी बिल्कुल, मैं एज ए साफी मैं अपने सुनने वालों को भी बताता चलूं कि हमारा काम है रिपोर्ट करना। पिछले दिनों में मैंने मोहम्मद अली साहब के हवाले से कोई बात की तो लोगों ने कुछ नाराजगी का इज़हार किया। मुझे तो जो खबर मिलेगी, जिस तरह आप, मेरे लिए आपकी खबर इसलिए मोतबर है क्योंकि आप बड़ी मतलब सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहे, आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मुझे सारा कुछ बता रहे हैं। जो मैंने देखा, मैं तो बताऊंगा जो मैंने देखा, और अगर कोई सुना है तो बड़ा मुस्तनद हवाला होगा उसका। ताकि अगर जावेद फाजल साहब का नाम लिया तो वो एक मुस्तनद हवाला थे, अली फाकी का नाम लिया तो एक मुस्तनद हवाला थे। अगर कोई बात किसी के रेफरेंस से होगी तो वो एक बड़े मुस्तनद हवाला देना पड़ती है साफी को। तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है, आप ऑन रहे हैं, आप बड़ी दुनिया के सामने हैं, तो आप जो बात कहें वो सच होनी चाहिए। जी जी हाँ, इसलिए मैंने वो जो आपको बताई तो वो मैंने भी अपने ऊपर से वो जो परस्तारी का लबादा था उसको मतलब आप समझते हैं कि उनके अपने रवैये का भी थोड़ा बहुत। हाँ, बिल्कुल, उनका मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा था उनके रवैये का, तो जाहिर है। लेकिन लोगों ने भी फिर उसको याद रखा, उसको माफ नहीं किया एक किस्म का, यानी भुलाया नहीं उस चीज को। जब घर वालों ने नहीं उसे माफ किया तो बाहर वाले कैसे करते? देखो ना, वो नाचाकी जो बनी घर पे तो उसमें भी घरेलू नाचाकी की आपके नजर में क्या वजह होगी? चले, मुझे ये चीज समझ आती है कि एक पीक का दौर होता है, इंसान करता है। अगर परवेज मलिक साहब के साथ उनका हुआ, वो पैसों वैसों का जो भी था अलग है, वो बात अलग है, चले। लेकिन घरेलू कैसे हो सकता है कि मैंने तो एक बंदा ग्लैमर से भरपूर बंदा हो जिसकी खवातीन में इतनी मकबूलियत हो कि सब कॉन्टिनेंटल में बहुत कम लोग होंगे जिनकी इतनी मकबूलियत खवातीन में रही हो, इतनी मकबूलियत के हर जगह चाहा जाए तो उसके लिए मसला घर में पैदा हो जाते हैं घरों में। क्योंकि खवातीन के साथ भी स्कैंडल्स भी बनते हैं, कुछ हकीकी भी होते हैं, कोई मसनूई भी होते हैं, कोई झूठ भी होते हैं, कुछ सच भी होते हैं, इसमें सच्चाई भी होती है। तो घर में जो नचाकी की चीजें बनी वो तो उस रूज के दौर में बनी जब उन्होंने घर पे टाइम नहीं दिया, तो वो चीजें आस्ता आस्ता वो पकती पकती एक लावा बन गई। तो जाहिर है एक वक्त आया कि वो फिर छोड़कर उनको चली गई तो जब वो वक्त ऐसा आया जब उनको जरूरत पड़ी फिर उन्होंने भी अपना आप दिखाया कि भाई ठीक है, अब आप बैठे, अब उनको ढूंढे जिनके सरों पर आप जो फिल्मी परियां थी वो कहाँ गई? आप दिन रात बसर करते थे, तो फिर ऐसा होता है। अच्छा, एक तो मैं बस आखिर में ना एक तो जनाजे के हवाले से पूछूं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ साजिद भाई कि जब मोहम्मद अली साहब ने नदीम साहब को इवन इजाजत, नो डाउट कि वो खुद हीरो थे दामन चिंगारी में, वो ज़ेबा साहिबा की जो जोड़ी असल में बनी थी, जो मशहूर हुई थी, जो जहां से शुरुआत हुई थी, वो तो महिमा साहब थे ना। तो ये था उनके ज़हन में मोहम्मद अली साहब के कि नहीं, इसके साथ तो आने नहीं देना, ना सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, वो क्योंकि एक इस तरह बन गई थी कि वो जोड़ी फिल्म की एक कामयाबी की जमानत बन गई और फिर अवाम में इतनी मकबूल जोड़ी होगी कि जैसे आम में जैसे इंडिया में बहुत सी जोड़ियां फिल्मों की बनी है, यहाँ पे मोहम्मद अली ज़ेबा की जोड़ी बन गई बाद में। उससे पहले जो जोड़ी बनी, सबसे पहली जोड़ी जो मकबूल हुई है स्क्रीन पर, हालांकि ज़ेबा ने कमाल के साथ भी काम किया, हबीब के साथ, इजाज सब आर्टिस्टों के साथ काम किया, लेकिन जो जोड़ी वहीद मुराद के साथ उनकी मकबूल हुई वो किसी और के साथ नहीं मकबूल हुई। वो ऐसी मकबूल हुई तो लोग कामयाबी की जमानत समझे जाने लगे। तो इस वजह से वहीद मुराद के साथ तो ये अलमिया रहा ना। वहीद मुराद के खवातीन ने काम देखे ना, तो सुपर हिट जितनी भी हीरोइनें हुई हैं उसके साथ बाद उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। उनकी फैमिली ने कह दिया कि इनके साथ काम नहीं करना, तो वो आस्ता आस्ता उन लोग को खवातीन भी पीछे हटना शुरू हो गई ना, इस वजह से ये सारा मामला हो। अच्छा, और दूसरा आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप जनाजे तक, मतलब उनको, बाकी तो आपने हवाल बताया, जनाजे के हवाले से बताएं कौन कौन आया था, क्या था उस दिन? जब इत्तला मिली उनके इंतकाल की तो वो कराची में, जी वो तो इंतकाल वहाँ पे हुआ, बिल्कुल। हाँ, अमिता अय्यूब की वालदा थी, उनकी बहन बनी हुई। जी फरीद साहब वहीं ठहरे हुए थे उनके यहाँ जब उनका इंतकाल उनके बेडरूम में हुआ। जी तो उनका जनाजा फिर हमें इत्तला, लियास रशीदी साहब मदीन नगार के मालिक जो थे, एडिटर, उन्होंने सबसे पहले कहा दी मुझे फोन पर के यार वहीद मुराद यहाँ पर हो गया कराची में इंतकाल, तो वो लाहौर लाएंगे, तो आप तैयार हैं कवरेज के लिए? चूंकि एयरपोर्ट से आपने साथ उसे जब मैयत आएगी तो आपने उसको वहीं से कवर करना शुरू कर। जी। तो फिर हम उसी वक्त उनके साथ रहे। सबसे पहले मोहम्मद अली पहुंचे, ये देखे ना, तो बात खुदी की है, मोहम्मद अली खुशी गमी में पहुंच जाते थे। मोहम्मद अली उसमें अदाकार तारिक शाह थे, उस वक्त नए नए होते थे, और कुछ लोग अदीब और काफी लोग मतलब आने शुरू हो गए थे। फिर सबसे पहले जो लोग बंदा पहुंचा वो मोहम्मद अली थे। अच्छा। जो मैंने देखा, मैंने कवर किया उसको, बिल्कुल वो मोहम्मद अली थे, वो सबसे पहले वो आए थे। उसके बाद तो लोग
हदायत वाली जमशेद और जितने भी लोग इकबाल यूसुफ वगैरह सब लोग आने शुरू हो गए, दीपा, बहुत सारे जितने भी लोग उस जमाने के हिट थे वो सभी लोग जनाजा देने आ गए थे। और सबसे ज्यादा गमगीन कौन था? आपने जाहिर है कवरेज के में साफी का तो ये होता है ना कि उसकी नजर होती है हर चीज पे। मर्दों में या औरतों में, जो भी हीरोइनों में जो भी सारे वो करती हैं, उनमें जरा ज्यादा सेंसिटिव होती है। दीपा इतना मतलब रो रही थी, दीपा थी उस जो मैं रोते हुए जिनको मैंने करीब से देखा। दीपा के अलावा किसको देखा? किसका नाम? बिंदिया भी थी उनमें। बिंदिया नहीं आई थी उनके साथ, कहीं पता नहीं किसी फिल्म में किया क्या नहीं था काम उस समय। एक दो में आई है महल में वो। हाँ, उनके घर पे आई हुई थी। उसके अलावा वहाँ सलमा मुमताज थी, वहाँ पे काफी लोग थे, लेकिन ये खवातीन में ज्यादा आओ बका थी। और मर्दों में मोहम्मद अली ज्यादा गमगीन और उदास बैठे हुए थे, बाकी लोग अपने अल्लाह गुल्ला वही फोटो सेशन में मसरूफ थे और तासरात अपने दे रहे थे। ज्यादा मोहम्मद अली को मैंने गमगीन। और कोई गैर हाजिरी भी महसूस किया आपने? हाँ, नहीं, इंडस्ट्री में लोग भरपूर आए थे जनाजे। शाहिद साहब, नदीम साहब सभी थे? सभी आए थे, भरपूर शिरकत। नदीम साहब भी थे? नदीम साहब नौजवानी के दौर में और फिर खूबसूरती और एक सिंबल थे अपने दौर के, बड़े एक्टर थे, तो वो लोग सभी आए थे उनके जनाजे में और भरपूर जनाजा था उनका। और लाहौर की तारीख का एक तारीखी जनाजा था वो भी, वहीद मुराद साहब। अच्छा, सही। साजिद इज़दानी साहब, बड़ा मजा है आपसे बात करके। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी हर अदाकार के हवाले से, जिस तरह पहले मोहम्मद अली साहब के हवाले से बात हुई, आज वहीद साहब के, बाकी अदाकारों के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पार्ट 2 आपने सुना साजिद इज़दानी साहब का वहीद मुराद साहब के हवाले से बात की। एक बात उन्होंने जो बाद में मुझे फ़ोन करके बताई कि अपने जूनियर्स को लेके वो किस तरह होते थे। गुलामुद्दीन साहब ज़ाहिर है कि बाद में आए थे 75 में, तो उनकी मेरा नाम मोहब्बत फिल्म आई थी, तो गुलामुद्दीन साहब ने साजिद इज़दानी साहब को बताया था कि, बल्कि साजिद इज़दानी साहब ने खुद भी देखा हुआ है। आपको पता है गुलामुद्दीन जो थे वो क्रिकेट, जो फिल्मी टीम थी क्रिकेट की, उसके कैप्टन भी रहे हैं और वहीद मुराद साहब उनके साथ भरपूर तावन करते थे, हर जगह आते थे। जिस जगह गुलामुद्दीन साहब जिस पोजीशन पे उनको फील्डिंग में खड़ा करते थे वो होते थे, जिस बैटिंग ऑर्डर में जिस तरह उन्हें भेजते थे वो आते थे, वो करते थे। और हमारे साथ भी बात करते हुए गुलू भाई ने, यानी गुलामुद्दीन साहब ने बताया था कि वहीद मुराद साहब उनसे कहा करते थे कि मुझे मेरे पास मिलने आया करो, तो मैं जाया करता था उनके पास और वो अपने दुख भी थोड़े से बांटते थे। ये बातें थी जो साजिद इज़दानी साहब ने की। आइंदा भी इनके साथ इंटरव्यू हम करते रहेंगे, बाकी अदाकारों के हवाले से भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।